ہوا پرس اور سچا بچہ ایک چھوٹے سے قصبے میں علی نام کا ایک 9 سالہ لڑکا رہتا تھا۔ علی کا چہرہ ہمیشہ معصوم اور آنکھوں میں سچائی کی چمک ہوتی تھی۔ اس کے والدین محنتی تھے، والد دکاندار اور والدہ گھریلو کام سنبھالتی تھیں۔ علی کو پڑھائی سے بہت محبت تھی اور وہ ہر روز سکول کے بعد مسجد کی لائبریری میں بیٹھ کر کہانیاں پڑھتا۔ اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور سچائی کی طاقت کا خیال بچپن ہی سے بٹھایا گیا تھا۔ ایک سب صبح دیل نے دوپہر کے بعد کے لیے اپنی جیب میں کچھ سکے اور اسکول کے لیے ضروری چیزیں رکھی اور گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا اور ہنستا رہا۔ وہ بازار کی سڑک کے کنارے سے گزرا، وہی سڑک جہاں ہمیشہ ہنرمند لوگ پھل والے اور چائے کی دکانیں ہوتی تھیں۔ اچانک اس کی نظر سڑک کنارے پڑے ہوئے ایک پرس پر پڑی۔ پرس کم از کم ایک آدمی کے ہاتھ کی کاریگری سے بنا ہوا تھا۔ رنگت گھریلی تھی اور اسے دیکھتے ہی علی نے اندازہ کر لیا کہ یہ کسی کا ہے۔ علی نے پرس اٹھایا اور اس کے اندر جین کاپس میں کچھ نوٹ، چند سکوئی اور ایک شناختی کارڈ تھا۔ کارڈ پر لکھا تھا سید ذکریہ استاد سرکاری اسکول گل باغ۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ پرس کھو جانے کا مطلب کتنا پریشان ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً سوچا کہ پرس اپنے پاس رکھ لے، اپنے گھر والے کسی طرح اس کی مدد کریں گے، تھوڑی سی رقم سے کچھ چیزیں لے لے۔ مگر علی کے ذہن میں اس کے والدین نے جو سبق سکھایا تھا وہ فوراً جاگ اٹھا۔ علی، والدین نے تمہیں سچائی کی قدر سکھائی ہے، ہمیشہ سچ کہو اور املاک غیر کو واپس کرو۔ وہیں پاس ایک دکان تھی جہاں چائے پینے والے لوگوں کا ہجوم لگا تھا۔ علی نے پرس اٹھایا اور دکان کے سامنے کھڑا ہو کر سوچا کہ کس طرح صاحب پرس تک پہنچے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا سب سے پہلے وہ اسکول جائے گا اور وہاں پوچھتا ہے کہ کیا کسی نے پرس کھویا ہے یا نہیں۔ اگر اسکول بند ہوا تو وہ سید ذکریہ کے گھر جانے کی کوشش کرے گا۔ علی نے پرس اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ اسکول پہنچ کر علی نے سب سے پہلے استانی صاحبہ کے پاس جا کر پوچھا، میڈم کیا کسی نے پرس کھویا ہے؟ استانی صاحبہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹے، مگر اگر تمہارے پاس کسی کا پرس ہے تو دفتر میں دے دو۔ علی نے پرس دکھایا اور کہا، یہ سید ذکریہ کا لگتا ہے، کارڈ بھی اندر ہے۔ استانی صاحبہ نے فوراً دفتر میں کال کر کے بتایا کہ وہ شخص واقعی ہمارے اسکول میں پڑھاتا ہے اور اس کا نام سید ذکریہ ہے۔ علی کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر وہ دب یہ سوچتا رہا کہ سید صاحب کو خبر دینے میں کتنا وقت لگے گا۔ اس وقت علی کے دوستوں نے پوچھا، علی کیا تم اس پرس کے نوٹ اپنے لیے نہیں رکھ لو گے؟ ایک دوست نے چالاکی سے کہا۔ علی نے نہایت سادگی سے جواب دیا، نہیں، یہ کسی کا ہے، میں اسے اسی کو واپس کروں گا۔ دوستوں نے ہنس کر کہا کہ علی بے حد سادہ ہے، مگر علی نے اپنے اندر کا اعتماد برقرار رکھا۔ اسکول کے پیچھے والے دروازے سے سید ذکریہ گزرے جو معمول کے مطابق لیٹ آئے تھے۔ سید صاحب کو پکڑ کر پرس دکھایا اور کہا، سر یہ آپ کا پرس ہے۔ سید صاحب کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر خوشی اور آخر میں تشویش کی لکیریں آئیں۔ انہوں نے پرس دیکھا اور آنکھوں میں نمی سی آ گئی، یہ میرا ہی پرس ہے، میں نے سوچا شاید میں نے گھر میں ہی رکھا ہوگا، مگر تم نے اسے ڈھونڈ کر واپس کر دیا۔ بیٹا، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ سید صاحب نے پرس کھولا اور اندر رکھے نوٹوں کو گنوا شروع کیا۔ انہوں نے فوراً علی کے شکرانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر علی نے انکار کر دیا۔ سید صاحب نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ علی نے شرماتے ہوئے کہا، سر مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے والد نے سچائی کا درس دیا ہے۔ سید صاحب نے یہ سن کر حیرت اور مسرت محسوس کی۔ انہوں نے علی کی سچائی کو سراہا اور کہا کہ یہ دنیا کے سب بڑے انعام سے بھی بڑھ کر ہی پیر۔ سید صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اسکول کی کلاس میں ایک نیکی کی کہانی سنائیں گے اور خصوصاً علی کی مثال بیان کریں گے۔ پورا اسکول خاموشی سے ان کی بات سننے لگا۔ سید صاحب نے کہا، آج علی نے وہی کیا جو ہمیں ہر وقت سکھایا جاتا ہے، ایمانداری۔ اس بچے نے اپنا فائدہ پسند کرنے کے بجائے انصاف اور سچ کا راستہ اختیار کیا۔ بچوں کی آنکھوں میں احترام بھرا نور تھا اور سب نے علی کی تعریف کی خبر جلد ہی قصبے میں پھیل گئی اور گاؤں کے بزرگ اور والدین نے علی کا شکریہ ادا کیا۔ چند لوگوں نے اسے تھوڑا سا انعام دینے کی کوشش کی، مگر علی نے پھر بھی انکار کیا۔ اس کے والدین نے اس کے قدموں میں ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے وہ کیا جو کم لوگ کرتے ہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا، اماں ابو یہ میرا فرض تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سید صاحب نے اس واقعے کو اسکول کے ہفتہ وار اجلاس میں خاص طور پر رکا۔ انہوں نے بچوں کو بتایا کہ ایمانداری صرف بڑے بڑے فیصلوں تک محدود ہے،
रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी इसकी कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा सच्चाई को अपना लेता है तो वो पूरे मुआशरे के लिए मिसाल बनता है। 10 दिन के बाद स्कूल में ईमानदारी का दर्जा बढ़ गया। बच्चे छोटी चीजें भी वापस करने लगे। किसी के सामान को जमीन पर पड़ा देखकर इसी के पास पहुंचा देते और झूठ बोलने से ग्रेस करते। कुछ दिनों बाद एक वाकया फिर पेश आया। एक तपाक भरा शाम था जब बाजार में चोरों ने एक बुजुर्ग की जेब खाली कर दी। इस वक्त अली वहां से गुजर रहा था। बुजुर्ग बेबस हालत में बैठा था और उसकी आंखों में दुख की लकीरें थीं। अली ने फौरन बुजुर्ग का दिल बहलाकर कहा, चाचा अब ठीक हैं, मैं आपके साथ हूँ। अली ने फौरी तौर पर बुजुर्ग को करीबी पुलिस स्टेशन तक पहुंचाकर इत्तला दी और साथ ही दूसरों की मदद से पैसे जमा किए ताकि बुजुर्ग घर तक पहुंच सके। लोग अली के इस कदम को देखकर मुतासिर हुए। इस दिन अली ने साबित किया कि सच्चाई और हिम्मत दोनों साथ चल सकती हैं। यहाँ एक अहम बात नोट करने वाली है। मुआशरे में जब एक बच्चा इज्जत, ईमानदारी और खिदमत को अपना लेता है तो उसके कदमों के निशान दूसरों को भी इस रास्ते पर लाते हैं। अली की सच्चाई ने पूरे पड़ोस में एक नई उम्मीद जगाई। बच्चों ने भी फैसला किया कि वो अली की तरह ईमानदारी अपना कर दिखाएंगे। स्कूल में इस पर एक छोटा सा इनामी प्रोग्राम भी रखा गया जहां अली को तरीफी सर्टिफिकेट दिया गया। मगर अली ने फिर कहा कि इसे सिर्फ अल्लाह के सामने खुशी महसूस होती है जब वो सच करता है। अली की कहानी का असर उसके घर तक भी पहुंचा। इसके वालिद ने इसे एक दिन बाजारी सफर के दौरान एक बायरी सी दुकान से एक किताब खरीद कर दी। किताब का उन्वान था अहम अक़दार, बच्चों के लिए सबक। अली ने किताब को दिल से पढ़ा और हर दिन इसमें से एक सबक अपने दोस्तों को सकेता। इस तरह न सिर्फ अली बल्कि इसके दोस्त भी ईमानदारी, एहतराम और खिदमत के रास्ते पर चल पड़े। कई महीने बाद एक और दिलचस्प वाकया हुआ। सैयद ज़िक्रिया ने अपनी क्लास में एक मुकाबला रखा। एक अच्छा किरदार अपने कस्बे का हीरो। बच्चों को घर की कहानियां, नेक काम और उसूली फैसले लाने थे। अली ने अपनी शर्त रखी, वो अपनी कहानी इसलिए नहीं सुनाएगा कि इसे शोहरत मिले बल्कि वो दूसरों को ये दिखाना चाहता था काफ छोटे बच्चों का भी किरदार बड़ा असर डाल सकता है। अली की कहानी ने पूरे मुकाबले का दिल जीत लिया और उन्हें स्कूल की तरफ से एक खुसूसी तारीफ मलकन इसके बजाय कि वो खुद खुश हो, अली ने इनाम अपने दोस्तों के साथ तकसीम कर दिया। इसने कहा कि ये सब की कामयाबी है, सब ने ईमानदारी और भलाई को अपनाया है। वक्त गुजरता गया और अली बड़ा होने लगा। इसकी सच्चाई और खुलूस ने इसे पूरे कस्बे में एक काबिले एहतराम नौजवान बना दिया। लोग इसे मशवरा मांगने आए, इसके दोस्त इसकी मिसाल से जुड़े रहे और उसके वालिदैन ने अपने बेटे की कुर्बानियों पर फख्र किया। सैयद ज़िक्रिया ने भी अली को अपना निगरान समझा और इसे मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई दी। जब भी कोई नया मसला आता, लोग अली की सच्चाई, साबित कदमी और मुदब्बिराना रवैये की मिसाल देते। कहानी का सबसे बड़ा सबक वो लम्हा था जब अली खुद अपनी जिंदगी में एक मुश्किल फैसला करना पड़ा। इसके सामने एक मौका आया कि वो अपने दोस्त के इम्तिहानी सवालात का झूठा इंतजार करके नकल कर ले। दोस्त ने कहा, कोई नहीं जानेगा, सिर्फ एक बार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अली ने लम्हा भर सोचा, दिल चाहा कि आसानी से कामयाब हो जाए, मगर उसने याद किया वो दिन जब उसने पर्स वापस किया था। वो आंखें जो उसके वालिदैन की फख्र से चमकती थीं, और वो चेहरे जो उसके सच के सबब मुस्कुराए थे। अली ने निहायत इत्मीनान के साथ कहा, नहीं, मैं नकल नहीं करूंगा, कामयाबी मेरी मेहनत से आएगी। इस फैसले ने अली को जिंदगी के इस सबक की कुंजी दी। सच्चाई सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। कहानी के आखिर में अली ने एक छोटी सी कम्युनिटी लाइब्रेरी खोली, वही जगह जहां इसने बचपन में कहानियां पढ़ी थी। आस लाइब्रेरी में बच्चों को मुफ्त किताबें देता, इखलाकी कहानियां सुनाता और उन्हें अमली जिंदगी में अच्छा करने के तरीके सकेता। का मकसद था कि हर बच्चा जान सके कि चाहे पर्स खो जाए या कोई और मशक्कत आए, ईमानदारी ही जिंदगी का सुनहरा ज़ामन। इस वाक़ये के बाद लोगों ने कभी भी अली के जज्बे को भुलाया नहीं। कस्बे के बुजुर्ग कहते, वो बच्चा जो पर्स वापस किया हमारे लिए रोशनी का मीनार बन गया। और बच्चे जो कभी अली के साथ बड़े थे, अपने बच्चों में भी वही उसूल मुंतकिल करते रहे। सबने कहानी मॉरल, एक ईमानदारी सबसे कीमती नेमत, चाहे हालात किसी भी किस्म के हों, ईमानदारी इंसान को इज्जत, सुकून, क़ल्ब और मुआशरती एहतराम दिलाती है। 2 छोटा अमल ही बड़ा असर रखता है। अली का छोटा सा अमल पर्स वापस करना पूरे कस्बे में नेक मिसाल बन गया है। छोटा अच्छा काम किसी बड़े तब्दीली का आगाज हो सकता है। 3 खुलूस और खिदमत अहम है। आजिज़ी से काम लेना और दूसरों की मदद करना जिंदगी को बेहतर बनाता है। इनाम जरूरी नहीं, दिल की तस्कीन काफ़ी है। 4 ईमानदारी खुद की भी मोहब्बत है।
जब हम सच्चाई अपनाते हैं तो हम अपने आप के साथ ईमानदार रहते हैं, और यही सबसे बड़ा हौसला है। यह कहानी बच्चों के लिए एक नमूना है कि सच्चाई, हिम्मत और खिदमत के रास्ते पर चलकर वो अपनी जिंदगी और अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं। अली जैसे न सिर्फ एक बल्कि कई लोग हमारे अंदर हैं, बस ज़रूरत है तो इस अच्छाई को पहचानने और इसे अमल में लाने का। अगर हर बच्चा एक बार भी ईमानदारी का इंतखाब करे तो दुनिया बहुत रोशन जगह बन सकती है। एक खोया हुआ पर्स भी कभी कभार एक पूरे मुआशरा की रोशनी बन जाता है। खोया हुआ पर्स और सच्चाई का बच्चा एक इखलाकी कहानी की तर्ज पर। गांव की छोटी सी गलियों में दुनिया की अपनी रफ्तार होती है, कभी धीरे कभी तेज। इसी गांव के एक कोने में नन्हा सा घर था जिसमें 8 साला अहमद अपनी माँ के साथ रहता था। अहमद का चेहरा रोशन और आंखें मासूम थीं। घर में पैसों की कमी थी मगर मोहब्बत और अमानत की कदर दिलों में बड़ी थी। अहमद की माँ रोजाना सुबह सवेरे खेतों में काम करने जाती और अहमद स्कूल जाता, जहाँ इसके उस्ताद इसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ किया करते थे। अक्सर सुबह की सनरा एक ताजिर का ठेला गुजरा जिस पर ताज़ा सब्जियां और मेवा रखे हुए थे। ठेले के करीब अहमद स्कूल के लिए घुस पाया। रास्ते में अचानक एक चीज जमीन पर पड़ी देखी, रंगीन चमड़े का पुरसाहन। ने सोचा शायद किसी ने इसे छोड़ दिया है। करीब जाकर देखा तो पर्स खुला था और अंदर काफी नोट, कागजात और एक शनाख्ती कार्ड पड़ा था। अहमद के दिल में एक अजीब सा हलचल सी। मुजहरस की हालत इसके अपने घर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसमें बेशुमार रुपए और एक पता भी था। पहली फिक्री ख्वाहिश थी कि ये पैसे लेकर अपने घर का बोझ हल्का किया जाए। इस ख्याल ने अहमद के ज़हन में एक लम्हे के लिए गर्दिश की, मगर फिर उसकी माँ के वो अल्फाज याद आए जो हमेशा कहती थी, बेटा ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अहमद ने पर्स उठाया, इसे एहतियात से बंद किया और अपनी जेब में रख लिया ताकि इसे गुम न कर दे। फिर इसने फैसला किया कि स्कूल के बाद पर्स मालिक को वापस कर देगा। स्कूल से वापस आने तक अहमद ने बारहा सोचा कि इस पर्स का मालिक कौन होगा। कहानी बनाई कि शायद वो अमीर ताजिर हो या कोई मुसाफिर जिसका सफर अधूरा रह जाए। रास्ते में इसने अपने दोस्तों को बताया तो कुछ ने मशवरा दिया कि चंद नोट ले लो और किसी को बता ही ना। मगर अहमद के दिल में वही एक चीज थी, ईमानदारी। वो जानता था कि सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं, इसलिए इसने पर्स अपने साथ रखा और मालिक तलाश करने निकल पड़ा। पता पढ़कर अहमद ने मालूम किया कि पर्स का मालिक शहर में रहने वाला एक बुजुर्ग 6 शख्स जिनका नाम हाजी गुलाम रसूल था। हाजी साहिब अक्सर शहर से कस्बे के करीब आते और में खरीदारी करते। अहमद ने सोचा कि शाम तक शायद हाजी साहिब वापस इजालकन। शाम ढल गई और कोई निशान न मिला। अहमद ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। माँ ने इसके चेहरे पर फख्र का इजहार किया और कहा, पर तुम्हारी सच्ची ईमानदारी का फख्र है। कल सुबह हम दोनों शहर जाकर मालिक को तलाश करेंगे। अगली सुबह अहमद और उसकी माँ सड़क के मोड़ से गुजरे तो बाजार में एक हुजूम देखा। लोग कुछ सरगोशी में मसरूफ थे। दरअसल शहर के मोहल्ला में आज एक मुजदा बांटा जा रहा था। किसी का बड़ा सा पर्स गुम हो गया था और मालिक बहुत परेशान था। अहमद ने हिम्मत करके वहां जाकर पूछा, क्या आपका नाम गुलाम रसूल है? हाजी साहिब ने इसे देखा तो फौरन गुलाम रसूल साहिब की पहचान हो गई। हाँ बेटा, मैं गुलाम रसूल हूँ, तुमने ये पर्स देखा? अहमद ने पर्स उनके हवाले किया। हाजी साहिब के आंखों में खुशी और हैरत दोनों का मिला जला इजहार था। उन्होंने अहमद को जोर से गले लगाया और कहा, अल्लाह तुम्हें अपना साया दे। मगर दास्तान यहाँ खत्म नहीं हुई। हाजी साहिब ने अहमद से पूछा कि ये पर्स इसे किसने दिया। अहमद ने सच सच बताया कि इसे जमीन पर मिला और उसने सोचा कि इसका मालिक शहर का कोई मुसाफिर होगा। हाजी साहिब ने पूछा, क्या तुमने पैसे नहीं दिए? अहमद ने सर बुलंद रखते हुए कहा, नहीं, मेरे दिल में ये बात नहीं आई कि सच छुपाया जाए। इस वक्त महल के लोग भी जमा हो गए। कुछ ने अहमद को दाद दी तो कुछ ने हैरत में कहा कि आजकल के जमाने में ऐसी ईमानदारी कम ही मिलती है। हाजी गुलाम रसूल ने अहमद की माँ को बुलाया और बड़े एहतराम से अर्ज किया, बेगम अपने एक ऐसा बच्चा पाल रखा है जो राइत के काबिल हिमजई, इसकी ईमानदारी का इनाम देना चाहिए। अहमद ने गहरी नफी में सर हिलाया। मैंने इनाम की उम्मीद नहीं की, मैं तो यही चाहता था कि मालिक को इसका हक वापस मिले। मगर हाजी साहिब ने जबरदस्त इसरार किया और आखिरकार अहमद की माँ ने इनाम कबूल कर लिया, एक छोटी सी रकम और एक नया किताबी बैग जो अहमद को स्कूल के लिए जरूरत था। मगर हाजी साहिब ने मजीद कहा, यही काफी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों को कहो कि ईमानदारी बेहतरीन अमल है और उसकी कीमत पैसों में नहीं देखी जाती। वो अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, जी साहिब, मैं यही कहूँगा।
ये वाकया पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग अहमद को सच्चा बचहकने लगे। स्कूल में भी उस्ताद ने इसकी मिसाल दी और उसके दोस्तों में एक नई रविश फरोग पाई कि सच्चाई और ईमानदारी की कदर करनी चाव्याहम के लिए जिंदगी मामूली सी तब्दीलियां लेकर आए। लोग इसका एहतराम करने लगे और कई बुजुर्ग इसे अपने घर के कामों में मदद देते। मगर अहमद की सादगी बरकरार रही। वो ना अमीर हुआ ना गुरूर में मुब्तला। इसके दिल में अब भी वही इज्जत थी जो इसकी माँ ने बचपन से आबियारी की थी। वक्त गुजरा और अहमद बड़ा हुआ। इसने हमेशा सच्चाई को अपना शियार बनाया। स्कूल के बाद इसने आला तालीम हासिल की और फिर अपनी माँ के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली। इस दुकान में अहमद ने हमेशा अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आना शुरू किया। कम तोड़ना कभी नहीं किया। गलती होने पर फौरन इस्लाह कर दी। इसका कारोबार रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा क्योंकि ग्राहक जानते थे कि यहाँ दियानतदारी मिलती है। इसी तरह अहमद ने अपने गांव के बच्चों को भी मुफ्त में स्कूल का सामान देना शुरू किया। इसी नकद-ए-नाम का एक हिस्सा वो अपनी माँ की नेक नीति से मदरसा के तलबा को देता रहा। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खिलने वाला था। अहमद ने सोचा क्यों ना इस स्कूल में बच्चों को ईमानदारी के बारे में अमली सबक दिया जाए। इसने एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया जहां बच्चों को मुख्तलिफ मंजरनामे दिखाकर सिखाया गया कि मुश्किल हालात में भी सच बोलने का क्या मतलब है। अहमद ने बच्चों को एक खेल का हिस्सा बनाया, पर्स का खेल, जिसमें बच्चों को फर्जी हालात में एक खोया हुआ सामान मिलता और उन्हें बताना होता कि वो क्या करेंगे। बच्चों ने भी शौक से हिस्सा लिया और पहले दिन ही कई बच्चों ने वही सबक सीख लिया जो अहमद ने अपनी माँ से सीखा था। कहानी की एक कड़वी हकीकत ये भी थी कि हर बार जब कोई सच्चाई की मिसाल सामने आती कुछ लोग हसद भी करने लगते। एक ताजिर जिसकी दुकान गांव में थी, इसने अहमद की बढ़ती हुई शोहरत देखी तो इसके दिल में तलखी बढ़ गई। इसने सोचा कि अहमद की साख कमजोर करके वो अपना फायदा बढ़ा सकता है। एक दिन इसने बाजार में अफवाह फैलाई कि अहमद ने किसी गरीब खातून का सामान चोरी कर लिया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। गांव में हलचल मची और कुछ लोग झटपट यकीन कर गए। अहमद की मां बहुत परेशान हुई मगर अहमद ने इस तमाम इंतशार में भी सब्र और तहम्मुल से काम ला। अहमद ने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए दलाइल पेश किए मगर वो जानता था कि झूठ का मुकाबला सच से ही होगा। इसने मकामी बुजुर्गों से बात की, दोस्तों से और उन लोगों से जिन्हें वो खिदमत करता था। बालाखर सच ने सर उठाया। ताजिर की अफवाह झूठी निकली और उसकी नीयत भी बेनकाब हो। ताजिर को मुआफी मांगनी पड़ी मगर उसकी इज्जत को जो नुकसान हुआ था वो पूरा नहीं हो सका। इस वाकया ने अहमद को ये सिखाया कि सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है मगर उसके लिए सब्र और साबित कदमी की जरूरत होती है। वक्त के साथ अहमद की जिंदगी में और कई छोटी बड़ी आजमाइशें आए मगर हर बार उसने सच को धड़कन में रखा। इसकी माँ उसके साथ हमेशा भरोसा रखती। एक दिन जब अहमद अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था तो रास्ते में एक सेठ नामी आदमी ने अहमद को रोका। वो सेठ शहर का बड़ा आदमी था जो अपने कारोबार में काफी बदनाम भी था। सेठ ने अहमद से कहा, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारी ईमानदारी की वजह से है, मगर कितनी देर तक ये सब चलेगा? दुनिया में हर कोई सच्चाई का बदला नहीं देता। अहमद ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, वो मेरे लिए ईमानदारी का बदला दुनिया देती है या ना दे, मुझे यही तरीका पसंद है। सालों के बाद अहमद की माँ बूढ़ी हो गई। अहमद ने हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा। इसने हर वक्त कोशिश की कि इसकी माँ की जिंदगी में राहत और इज्जत रहे। गांव के लोग अक्सर कहते, हमें अहमद जैसी नस्ल चाहिए। ऐसे लोग मुआशरे को मजबूत बनाते हैं। अहमद ने अपने बच्चों को भी वही सबक दिया जो इसकी माँ ने इसे दिया था। बच्चों को बताता कि इक़्तिदार, दौलत और शोहरत आर्जी हैं मगर अच्छे किरदार की शमा हमेशा रोशन रहती है। एक दिन अहमद की दुकान पर एक बुजुर्ग आए। उनकी शक्ल और सूरत में वही हाजी गुलाम रसूल की झलक थी जिनको कभी अहमद ने वो पर्स वापस किया था। हाजी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुमने मुझे एक दिन सुनहरी सबक दिया था। आज मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं कि तुम पाकिस्तान के एक बड़े फलाही मंसूबा का हिस्सा बनो। अहमद ने हैरत से पूछा, वो क्या, मैं किस तरह? हाजी साहब ने बताया कि वो अपने कारोबारी असर रसूख और चंद खैराती इदारों के साथ मिलकर गांव में एक छोटा तालीमी और फलाही मरकज कायम करना चाहते हैं
और वो चाहते हैं कि अहमद इस अक़दाम का सरबराह बने। अहमद ने आजिज़ी से कहा, मैं तो सिर्फ वही करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, लोगों की खिदमत। हाजी साहिब ने कहा, तुम ही वो इंसान हो जिस पर हमें भरोसा है। ये मौका अहमद के लिए ज़िंदगी का नया मोड़ साबित हुआ। इसने इस मरकज़ की बुनियाद रखी जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम, स्कूल के साजो सामान और इखलाकी तरबियत दी जाती। इसके अलावा मरकज़ में ऐसे प्रोग्राम होते जिनमें कमज़ोर ख़ानदानों को रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाते। अहमद ने हर गुज़रते दिन के साथ ये साबित कर दिया कि ईमानदारी सिर्फ वो चीज़ नहीं जो शख्स को ज़ाती एतबार से फ़ायदा पहुँचाए, बल्कि ये पूरे मुआशरे को मजबूत कर देती है। इस मरकज़ के ज़रिए कई बच्चों की ज़िंदगी बदल गई। बहुतों ने आला तालीम हासिल की और वापस आकर अपने गांव की फलाह के लिए काम किया। वक्त ने अहमद को भी एक बुजुर्ग बना दिया। इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी वही सबक लोगों को दिया, सच बोलो, सच पर कायम रहो और दूसरों के हक़ का ख्याल रखो। जब अहमद इंतकाल कर गए तो पूरा गांव सोगवार हुआ, मगर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा वो सबक था जो उन्होंने पीछे छोड़ा। नाम पर एक लाइब्रेरी बनाई गई जहां बच्चों को ईमानदारी और इखलाकी अक़दार के हवाले से कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग वहां आकर अहमद की ज़िंदगी से सबक लेते और अपने बच्चों को अखलाक का खुलासा यह है कि एक खोया हुआ पर्स ने एक छोटे से बच्चे की ईमानदारी को कौम के सामने ला खड़ा। काश ईमानदारी ने न सिर्फ इस बच्चे की ज़िंदगी बदल दी बल्कि पूरे इलाके में एक रोशनी फैली। न थी कि अहमद ने सिर्फ एक पर्स वापस गया, इसने एक पैगाम दिया। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पहचान है और ये पैगाम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। कुछ अमली सबक, खलास इखलाकी, एक ईमानदारी बुनियादी कदर है। अहमद की मिसाल बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत न सिर्फ फ़र्द को बल्कि पूरी बरादरी को फ़ायदा पहुँचाती है। 2. सब्र और साबित कदमी की ज़रूरत। जब कोई इल्ज़ाम या मुश्किल आए तो बर्दाश्त और साबित कदमी से काम लें, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। 3. ईमानदारी का मुआशरती असर। एक सच्चा अमल दूसरे लोगों को मुतासिर करता है और दीर असर वसी होकर मुआशरे को बेहतर बनाता है। 4. सेक्युलर इनाम से बढ़कर जज्बाती अजर। सच्ची ईमानदारी का अजर मादी इनाम से बढ़ कर दिल का सुकून और इज्जत में इंसानियत है। 5. तालीम और अखलाक। बच्चों को अमली तौर पर अखलाक सिखाएं कि सिर्फ बातें करने से फ़ायदा नहीं होता, अमल ज़रूरी है। ये कहानी महज एक दास्तान नहीं बल्कि अमल करने का पैगाम है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर बच्चों के लिए मुख्तसर सबक, सवालात और मशक़ें भी बना कर दे दूँ ताकि स्कूल घर में पढ़ाने में आसानी हो। खोया हुआ पर्स और सच्चा बच्चा। एक मुख्तसर इखलाकी कहानी अल्फाज के करीब। गर्मियाँ थीं और बाजार की रौनक उरूज पर थे। चिवटी छोटे दुकानदार अपने सामान सजाए बैठिए। गलियाँ खुशबूदार मसाला, ताज़ा फल और चमकती हुई अशिया से भर गई थीं। इसी बाजार के एक कोने में आसिफ नामी सा 7 साला बच्चा अपनी माँ के हाथ में हाथ डाले चल रहा था। आसिफ का कद छोटा था मगर उसके चेहरे पर एक संजीदा सी मुस्कुराहट और आंखों में मासूमियत की चमक थी। वो अपने गांव के स्कूल में जाता था, सादा कपड़े पहनता और हर काम में सच्चाई का दामन थामे रहता। आज इसकी माँ बाजार आई थी ताकि घर के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें ले ले। आसिफ वैसे ही इधर उधर देखता, दुकानों के शीशों में अपना अक्स देखता और कभी कभार किसी दलाल के हाथ से चिलमन के रंगीन पते छीनता। अचानक इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक सुनहरी सा पर्स पड़ा था। पर्स थोड़ा पुराना मगर अच्छा था और जब आसिफ ने इसे खोला तो अंदर नकदी, चंद कार्ड्स और एक छोटा सा नोट था जिस पर किसी बुजुर्ग औरत का नाम और घर का पता लिखा हुआ था। पर्स देखकर दिल में खुशी और उलझन दोनों आई। खुशी इसलिए कि जेब में अचानक मिलने वाली रकम बच्चों के लिए एक छोटी सी दुनिया होती है। एक लॉलीपॉप, एक खिलौना, शायद स्कूल के लिए नए कलम। मगर उलझन इसलिए कि वो जानता था कि ये चीज़ किसी की हियास ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो सब्जी ले रही थी और उनकी निगाहें आसिफ पर नहीं थीं। आसिफ ने पर्स अपनी आगोश में छुपा लिया और दिल में सदा निकली, ये मेरा हक नहीं, किसी का है। आसिफ ने कभी गलती से किसी चीज़ को नहीं रखा था। इसके वालिदैन ने छोटे से ही इसे सच्चाई, अदल का एहतराम और दूसरों का हक वापस करने की तलकीन की थी। घर में बेटियों और बेटों के साथ गुफ्तगू में यही बात बार आती। कहा कि अच्छा इंसान वो है जो सच कहे और सच पर जिए। आसिफ ने पर्स पकड़ा, इसे गुल्हाए दिल में मजबूती से थामा और अपनी माँ की तरफ चला गया। उम्मी ये किया है। आसिफ ने पर्स अपनी माँ के सामने रखा। इसकी माँ ने पर्स खोला, अंदर का सामान देखा और बोले, बहुत मुमकिन है ये किसी बूढ़ी औरत का हो, नोट में पता लिखा है।
जी उम्मी, यहाँ लिखा है हजरत आयशा बीबी, घर नंबर 14, मोहल्ला हसन खान। आसिफ ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। इसकी माँ ने खीरे की पट्टी रखी और आसिफ की पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेहतरीन बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया कि फौरन ला, ये हम मालिक के घर पहुंचा देंगे। रास्ता कट रहा था मगर बाजार के रास्ते से घर का रास्ता तवील था। उम्मी ने सोचा कि बाजार के करीब एक पुलिस चौकी है, वहां भी दे दिया जाए तो बेहतर होगा, मगर आसिफ की नीयत साफ थी। वो बड़ा रास्त मालिक को वापस करना चाहता था। इसने घर के नक्शे को जहन में दोहराया और पूछा, उम्मी, क्या हम ये पर्स अभी ही मालिक को दे सकते हैं? माँ हंस कर बोले, चुल्लू, तुमने सच किया तो अब हमें भी सच के साथ चले जाना चाहिए। दोनों चलते चलते गलियों और कूचों से गुजरते घर नंबर 14 वाले मोहल्ले तक पहुंचे। रास्ते में आसिफ ने लोगों से पूछा, क्या यहाँ आयशा बीबी रहती? कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना। उबलिखर एक बुजुर्ग ने बताया, वो आयशा बीबी तो कल ही दरवाजे से गई थीं, शायद आज ना हो। आसिफ दिल मायूस न होने दिया। इसने सोचा शायद वो बाजार में भूल गई हूँ। इसी दौरान एक पड़ोसन खातून ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम बाजार से आए हो? क्या कुछ गुम हो गया? आसिफ ने सारा वाकया सुनाया। पड़ोसन ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, जब भी कोई चीज मिले तो पहले माल खुद को तलाश करना चाहिए, फिर पुलिस, फिर ऐलान। मगर तुमने अच्छा किया है कि मालिक की तरफ रहे हो। महल्ले में जाकर दरवाजा खटखटाया गया। एक बूढ़ी खातून ने आहिस्तगी से दरवाजा खोला। इसकी आंखों में थकन मगर चेहरा मेहरबानी से भरा हुआ था। जब वो पर्स देखा तो आंखों में नमी सी आ गई। या रब, ये मेरा पर्स है, वो बोली। इसके हाथ कपकपाई। इसने पर्स पकड़ा और आसिफ की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुमने ये कैसे पाया? आसिफ ने सादगी से सारा किस्सा बताया। बूढ़ी खातून ने गिले लगाकर कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में तुम्हें जज़ाई खैर दे। इसके आंसू खुशी के थे। इसने पर्स खोलकर अंदर मौजूद चीजें गिन, पैसे, शनाख्ती कार्ड और एक याददाश्त जिसमें इसके बेटे का फोन नंबर लिखा था। ये मैं बाजार गई थी और रास्ते में ये गुम हो गया, मगर खुदा का शुक्र है कि ये सच्चा हाथ मिला, इसने कहा। बूढ़ी खातून ने आसिफ के वालिदैन को चाय पर बुलाया। घर में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि पर्स में कुछ नकद रकम उनके बेटे ने भेजी थी ताकि वो अपने इलाज के कुछ अखराजात पूरे कर सकें। इसने आसिफ की तारीफ की और फरमाया, ये बेटा, इस बच्चे ने हमें आपकी तरह सिखाया हुआ अखलाक दिखाया है। आसिफ का दिल खुशी से झूम उठा। मगर जब बूढ़ी खातून ने अपना हाथ पर्स के अंदर डाला तो इसने आसिफ को कुछ देने की कोशिश की। आसिफ ने फौरन हाथ झटक लिया और कहा, मैं ये नहीं ले सकता, ये आपका है। बूढ़ी खातून ने इसरार किया, नहीं बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का सिला है, कम अज कम ये मेरी तरफ से तुम्हारी यादगार कबूल करो। आसिफ के वालिदैन ने बताया कि उनके खानदान में सदका और खैरात एक रवायत है, मगर उन्होंने आसिफ की सच्चाई पर फख्र महसूस का। बूढ़े खातून ने आखिरकार एक छोटा सा रीछ नुमा खिलौना चिप्स का एक थैला और कुछ रकम आसिफ को दी ताकि वो स्कूल के लिए नई चीजें खरीद सके। आसिफ ने शुक्र अदा किया, मगर इसने बस्ते में रखा हुआ वो छोटा सा नोट वापस कर दिया। हमें आपकी दुआ ही चाहिए, इसने कहा। यह वाकया गांव में तेजी से फैल गया। लोग आसिफ की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। स्कूल में भी इसकी तारीफ हुई। इसके उस्ताद ने इसे सबके सामने सराहा और कहा, आसिफ ने वो काम किया जो हर अच्छे इंसान का फर्ज होता है। वक्त गुजरता गया और आसिफ बड़ा होता गया। इसकी ईमानदारी और सच्चाई ने इसे हर जगह इज्जत दिलाई। मगर कहानी का असल सबक वो नहीं था कि आसिफ ने एक पर्स वापस किया। असल सच्चाई ये थी कि इसने अपने दिल में एक इखलाकी उसूल रासिख किया कि सच और ईमानदारी सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि इंसान की पहचान है। एक रोज गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग खुश थे और बाजार में मजीद रौनक। अचानक कुछ शोर मचा। किसी बड़े आदमी का बागीचा चौकीदार के सामने लट गया था। लोगों ने देखा कि एक सेठी बजती है और एक नौजवान लड़का जो गांव में नया आया था एक भीड़ में खड़ा है। इसकी आंखों में खौफ था, मगर उसने सर झुकाकर खड़ा रहा। हंसने चलाकर कहा, ये तो वही लड़का है जो चूर है। गांव के बुजुर्ग और नौजवान मुत्तफिक नहीं हुए। कुछ ने फौरन इसे सरनाम सजाने की बात की, मगर आसिफ ने कहा, सबूत सामने आ जाएं तभी फैसला करें। आसिफ जानता था कि झट से फैसले अक्सर जुल्म का सबब बनते। आवाज ने पूछ-गुछ शुरू की, लोगों से बातें की और चौकीदार से तफसीली हाल मालूम किया। आहिस्ता आहिस्ता सच मंजर आम पर आया। चौकीदार ने गलती से दूसरे बागीचे की चीज चोरी होने की इत्तला दे दी थी और असल चोर एक और शख्स निकला था। अगर आसिफ वहां ना होता तो एक मासूम नौजवान की जिंदगी तबाह हो सकती थी। इसने न सिर्फ सच का साथ दिया बल्कि एक और रोशनी भी इनके बेगुनाह का बचाव। इस वाक़ये ने गांव को ये सबक दिया कि एहतियात और इंसाफ दोनों जरूरी हैं
और आंखें बंद किए बगैर सच तलाश करना 4 सालों बाद जब आसिफ जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसके बारे में सुनहरी दास्तानें सुनने को मिलती थे। लोग इसकी ईमानदारी, दियानतदारी और मदद का जिक्र करते। एक दिन जब वो अपने स्कूल का दौरानिया मुकम्मल करके वापस गांव आया तो उसने देखा कि बूढ़ी खातून जिनके घर पर्स मिला था अब ज़ईफ और तन्हा रह गई थी। आसिफ ने सोचा कि अब वक्त है इसका कुछ खास करने। कास ने अपनी जमा पूंजी में से कुछ रकम निकाली और बूढ़ी खातून के घर के सामने एक छोटा सा बाग बनाया, फूलों के पौधे लगाए, एक बेंच रखा और करीब पानी का छोटा सा कुआं तामीर किया। बूढ़ी खातून खुश हुई, उसने आसिफ को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी कायम रखी है। ये वाकया आसिफ की जिंदगी का एक नया मोड़ साबित हुआ। इसने अपने अंदर ये जज्बा पैदा किया कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि दूसरों की भी जिंदगी में बेहतरी ले आएगा। गांव के लोगों ने मिलकर उसके साथ मंसूबा बनाया। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल कायम किया जहां बच्चे इल्म के साथ साथ अखलाकियात भी सीखते। आसिफ ने खुद उस्ताद का किरदार निभाया और हर बच्चे को सिखाया कि ईमानदारी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक अमल है और अमल में तब्दीली ही समाज को बेहतर बना सकती है। 15 साल गुजर गए। वो बच्चा जिसने एक खोया हुआ पर्स वापस किया था अब एक नौजवान बुजुर्ग बन चुका था। इसकी मासूम मुस्कुराहट वही थी। एक दिन इसे एक मौका मिला कि वो शहर की तरफ जाए और बड़े इदारे में नौकरी इख्तियार करे। बहुत से लोगों ने कहा, यही मौका है तुम्हारी किस्मत बदलने का, मगर आसिफ ने अपने दिल से सोचा इसने वो उसूल कभी नहीं बदले जो उसके वालिदैन ने इसे सिखाए थे। वो जानता था कि भले शहर में वो ज्यादा पैसे कमा ले मगर गांव के बच्चे और बूढ़ी ख्वातीन किसके पास रहेंगे। इसने फैसला किया कि वो गांव में ही रहेगा, अपने लोगों की खिदमत करेगा और हर बच्चे को वही सबक सिखाए जो इसने खुद जीना था। वक्त ने साबित किया कि आसिफ का फैसला दुरुस्त था। इसने न सिर्फ ईमानदारी को संभाला बल्कि गांव को एक मिसाली मुआशरा बना दिया। लोग मिलजुल कर रहने लगे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हुए और दूसरों के हुकूक का एहतराम करने लगे। आसिफ ने अपनी जिंदगी में कई बार सच्चाई की मिसालें दी कि किसी भूले हुए लीडर को वापस किया, किसी गलत फहमी को जुबान से नहीं बल्कि दलील से सुलझाया और हमेशा इंसान को मुकद्दम रुके। एक दिन जब आसिफ की उम्र बढ़ रही थी एक नौजवान ने इसके पास आकर कहा, सर आपने अपनी पूरी जिंदगी हमें सच और ईमानदारी का सबक सिखाने में लगा दी, अब हमें बताएं कि ये सब आपने क्यों किया? आपने कभी बड़े इनाम के लिए ये सब नहीं किया। आसिफ ने मुस्करा कर कहा, बेटे सच वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती। हमने कभी इनाम के लिए नहीं किया, मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी। जब तुम अपने ज़मीर की पैरवी करते हो तो खुद बखुद तुम्हारे अमाल में असर आ जाता है और यही असर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। ये अल्फाज नौजवान के दिल में घर कर गए। इसने सोचा कि सच और ईमानदारी कोई भारी फलसफा नहीं, ये छोटे छोटे अमल हैं जो रोज़मर्रा के फैसलों में नजर आते हैं। आसिफ की जिंदगी ने साबित किया कि एक शख्स की ईमानदारी पूरे मुआशरे को बदल सकती है। आखिरकार उस कहानी का असल पैगाम है, दुनिया में बहुत सी चीज़ें गुम हो जाती हैं पर सामान हता के मोतबर रिश्ते भी, मगर सच्चाई और ईमानदारी अगर दिल में जड़ पकड़ जाएं तो वो चीज़ें जो असल में अहम हैं कभी गुम नहीं होती। आसिफ ने एक खोया हुआ पर्स वापस किया था मगर उसने एक पूरे गांव की सच्चाई और एजाज वापस कर दिया था। इसी के साथ इसने आने वाली नस्लों को ये सबक दिया कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता मगर यही रास्ता हमें इज्जत, अमन और दुरुस्ती की मंजिल तक पहुंचाता है। इख्तितामिया इखलाकी सबक, खोया हुआ पर्स सब्र एक मादी चीज़ थी मगर उसकी वापसी ने दिखाया कि ईमानदारी का एक छोटा सा अमल बड़े असरात का सबब बन सकता है। सच और दियानतदारी सिर्फ कानून और रस्में नहीं, ये इंसान की रूह की खुराक आओ। जिसने सच्चाई को अपना लिया वो न सिर्फ खुद बेहतर बन जाता है बल्कि अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी रोशनी छोड़ जाता है। हमें चाहिए कि हर मौके पर चाहे छोटा हो या बड़ा सच का साथ दें, क्योंकि सच्चाई कभी ज़ाय नहीं होती, वो हमारे अंदर रहकर दुनिया को बेहतर बनाए। खोया हुआ पर्स और सच्चा बच्चा। एक छोटे से कस्बे में अली नाम का एक 9 साला लड़का रहता था। अली का चेहरा हमेशा मासूम और आंखों में सच्चाई की चमक होती थी। के वालिदैन मेहनती थे, वालिद दुकानदार और वालिदा घरेलू काम संभालती थी। अली को पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी और वो हर रोज स्कूल के बाद मस्जिद की लाइब्रेरी में बैठकर कहानियां पढ़ता। इसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी और सच्चाई की ताकत का ख्याल बचपन ही से बिठाया गया था। एक सर्द सुबह तेल ने दोपहर के बाद के लिए अपनी जेब में कुछ सके और स्कूल के लिए जरूरी चीजें रखी
और घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो अपने दोस्तों के साथ खेलता और हंसता रहा। वो बाजार की सड़क के किनारे से गुजरा, वही सड़क जहां हमेशा हुनरमंद लोग, फल वाले और चाय की दुकानें होती थीं। अचानक इसकी नज़र सड़क किनारे पड़े हुए एक पर्स पर पड़ी। पर्स कम अज कम आदमी के हाथ की कारीगरी से बना हुआ था। रंगत घिरीली थी और इसे देखते ही अली ने अंदाजा कर लिया कि ये किसी का है। अली ने पर्स उठाया और उसके अंदर जेन कापरेस में कुछ नोट, चंद सकुई और एक शनाख्ती कार्ड था। कार्ड पर लिखा था सैयद ज़िक्रिया उस्ताद सरकारी स्कूल गिलबाग। अली का दिल जोर जोर से धड़का। वो जानता था कि पर्स खो जाने का मतलब कितना परेशान हो सकता है। इसने फौरन सोचा कि पर्स अपने पास रख ले, अपने घर वाले किसी तरह इसकी मदद करेंगे, थोड़ी सी रकम से कुछ चीजें ले ले। मगर अली के जहन में इसके वालिदैन ने जो सबक सिखाया था वो फौरन जाग उठा। अली, वालिदैन ने तुम्हें सच्चाई की कदर सिखाई।